serial number 9 in today's order paper. Item number 10, Sri Narayan Das Ahirwar. महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के अंतिम कार्रवाई के वक्तव्यों को सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 11, सुश्री वर्षा गायकवाड़। नहीं आई। मैं आज कार्यसूची क्रमांक 11 पर मेरे नाम के समक्ष तथा सूचीबद्ध शिक्षा, महिला, बाल, युवा व खेल के स्थायी समिति की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग 2025 और 26 के 365वें प्रतिवेदन को जो है सभा पटल पे रखती हूँ। आइटम नंबर 12, श्री चंदन चौहान। I beg to lay a copy of the 328th report of the department related Parliamentary Standing Committee on Industry as received against my name, serial number 12, in order to order paper. Item number 13, श्री तोकन साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री मनोहर लाल जी की ओर से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 13 पर दीनदयाल जन आजीविका योजना शहरी पायलट नामक नई योजना के आपातकालीन मामले में व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि से किए गए आहरण के बारे में एक वक्तव्य सभा के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 14, श्री सर्वानंद सोनवाल। Respected Speaker, sir, I rise to move for leave to introduce the Indian Port Bill 2025 to consolidate the law relating to ports, promote integrated port development, facilitate ease of doing business and ensure the optimum utilization of India's coastline. Establish and empower state maritime boards for effective management of ports other than major ports. Establish the Maritime State Development Council for fostering structured growth and development of the port sector. Provide for the management of pollution, disaster, emergencies, security, safety, navigation and data at ports. Ensure compliance with India's obligation under international instrument to which it is a party. Take measures for the conservation of port. Provide for adjudicatory mechanism for the redressal of port-related disputes and address matters connected therewith or incidental thereto. श्री मनीष तिवारी जी। थैंक यू वेरी मच। माइक चालू हो गया ना? हाँ जी। इनको बताओ माइक कैसे चालू होता है। आप बताइए ना अध्यक्ष जी, आप बताइए ना अध्यक्ष जी कैसे माइक चालू होता है। माइक कैसे चालू होता है? अध्यक्ष जी आप बताइए कि माइक कैसे चालू होता है। आप बैठो तो मैं बताता हूँ माइक चालू। चलो बैठो, आप बैठे, आप बैठो, बैठे। आप बता दीजिए माइक कैसे। आप बैठो। माइक जब ही चालू होगा जब माननीय अध्यक्ष उसकी अनुमति देगा। बिना अध्यक्ष के माइक चालू नहीं हो सकता। चलिए मनीष तिवारी जी। अध्यक्ष जी हाउस ऑर्डर में तो आना चाहिए। हाउस तो ऑर्डर में आना चाहिए। चाहते हैं दादा, हाउस तो ऑर्डर में आना चाहिए। आप आपके सदस्य को नहीं बोलना है। चले मनीष तिवारी जी। मनीष तिवारी जी, आप मनीष तिवारी नहीं बोलना चाहते? श्री के राधाकृष्णन। के राधाकृष्णन। के राधाकृष्णन। Thank you, Speaker, sir. Sir, I oppose the introduction of the Indian Port Bill 2025. Sir, this bill encroaches upon the power of state governments and undermine the federal structure of Indian Constitution. The bill seeks to centralize control over port, which interfere with the distribution of powers between the union and state government as defined in the 17th schedule of the Constitution. Sir, the bill violates State List Entry 31, Article 1, 2, 4, 6, 3, 1, 6, 2 and
368. Sir, so I urge the government to withdraw this bill or replace with another bill. श्री बेनी बेनन नहीं, श्री सोगत राय। Sir, under Rule 72(1) of the Rules of Procedure and Business, I oppose the introduction of the Indian Ports Bill 2025. The Indian Ports Act was enacted in 1908. At that time, all the ports were under the center and ownership of the central government. But in recent times, many private ports have come up, and parts of government ports have been leased to private companies. The present legislation does not appear to be adequate to control the private ports. It has been proposed in the new bill that a new adjudicating mechanism will be set up. So far as the wages of port workers were concerned, they are finalized through tripartite mechanism in which the labor had an equal role. The present bill may take away the rights of the workers, and hence I oppose the adjudication and I oppose the bill. Respected Speaker, sir, this particular merit is brought on merit, and this House has like full powers, and also that is why I request, respected Speaker, sir, please allow me to introduce. माननीय सदस्य, आप सब सदस्य कहते हैं कि फ्राइडे को मेंबर्स का प्राइवेट रेजुलेशन है और उस दिन जब प्राइवेट संकल्प होता है या प्राइवेट बिल होता है, आप सदन नहीं चलने देना चाहते, तो क्या माननीय सदस्यों का आप हक छीनना चाहते हैं? आप शून्यकाल नहीं चलाना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते? आप सदन व्यवस्था से चलेगा, सदन नियमों से चलेगा, सदन संविधान से चलेगा। न तो सदन आपके के आग्रह से चलेगा, न सदन इनके कहने से चलेगा। सदन हमेशा नियम प्रक्रियाओं और लोकसभा की प्रक्रिया काल संचालन की व्यवस्था से चलेगा। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पर स्थापित इंट्रोड्यूस द बिल। शून्यकाल श्री नवीन जिंदल। नवीन जिंदल नो। धन्यवाद। नवीन जिंदल। माननीय अध्यक्ष जी। नवीन जिंदल। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। नवीन जिंदल। मैं अत्यंत पीड़ा और आक्रोश के साथ इस सदन के माध्यम से आपका ध्यान 13 मार्च को नवीन जिंदल 13 मार्च की रात पटियाला पंजाब में हुई एक शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह घटना न केवल एक व्यक्ति के साथ बल्कि पूरे फौजी समुदाय के सम्मान और गरिमा पर हमला है। अध्यक्ष जी, भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी कर्नल पुष्पेंद्र बात साहब और उनके बेटे अंगद को पंजाब पुलिस के 12 अधिकारियों द्वारा मामूली पार्किंग विवाद को लेकर बेरहमी से पीटा गया। यह हमला सड़क किनारे एक ढाबे के पास हुआ और सीसीटीवी के अंदर पूरी तरह से रिकॉर्ड हो गया। अध्यक्ष जी, सबसे दुखद पहलू यह है कि 9 दिन तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। बार बार गुहार लगाने के बावजूद पीड़ित परिवार को केवल झूठे आश्वासन ही मिले। अध्यक्ष जी,